प्रेमपुर जी महाराज के चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित सभी संतों को वंदन और सभी सत्संगियों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती है और बहुत ही सुंदर दिवस है। मुझे एक शादी में जाना था तो गीता जयंती के दिन शादी का भी हमने ये देख लिया और यहाँ भी आपके साथ आ गए। गीता जयंती में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार हमने ऐसा कार्यक्रम सोचा कि गीता का महात्म्य और हमारे जीवन पर गीता का क्या प्रभाव पड़ा है। हमारे 2 सत्संगी है, एक मालिनी बहन है और गिरीश भाई है। ये दोनों जन कई वर्षों से गीता के साथ जुड़े हैं। ऑफ कोर्स मैं भी जुड़ी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ और इनको मैं कहूँगी कि ये अपना अनुभव शेयर करें कि गीता का इनके जीवन पे क्या प्रभाव हुआ है। और इसके अलावा हमारे संत हैं जो गीता का महात्म्य उसके बारे में हमको बताएंगे और इनको भी उन्होंने भी अपने जीवन में गीता उतार ली है। तो ये ये गीता का इनके पूरे करियर पे क्या प्रभाव रहा है, एक संत होने के, एक ब्रह्मचारी होने के नाते इसके बारे में भी हम सुनेंगे। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत हम शंखनाद से करेंगे। हमारे बीच में समीर भाई पंड्या है, जो संत उन्होंने कहा है कि वो शंख शास्त्र के विशेषज्ञ है और शंख का महत्व हम सब समझते हैं कि गीता के पहले अध्याय में कितने सारे शंखों का वर्णन किया गया है। और और हर एक जगह पे कोई अच्छा कार्य होता है तो शंखनाद किया जाता है। शादियों में भी हमारी बहू बंगाली है, तो बंगाली हमने तरह से शादी की थी, तो उसमें भी कई अलग-अलग जगहों पर जो हमारे पंडित थे वो शंखनाद करते थे। तो शंख का एक बहुत ही एक शुभ चीज़ मानी जाती है। और मैं अभी समीर भाई से निवेदन करूँगी। समीर भाई ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुनाया है, कई संतों को ये शंखनाद उन्होंने सुनाया है और इसके बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी जानकारी ली है। आज हम उनको ज़्यादा तो नहीं सुन पाएँगे, लेकिन उनका शंखनाद और 5 मिनट में शंखों के बारे में उन्होंने जो काम किया है, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो समीर भाई आओ। આદરણીય ભાગવત આચાર્ય અને ગીતાને જેમને પોતાના જીવનમાં ઉતારી છે એવા પરમ પૂજ્ય અનિલભાઈ પંડ્યાજી મહારાજ, સંતોને એમનો પરિચય મને નથી, પણ એમના કરકમલો જ્યારે આવે ત્યારે મેં નિહાળે તો બ્રહ્મ તત્વની અનુભૂતિ થઈ એવા સંતો. અને આ સમારંભને આયોજિત કરનાર ટ્રસ્ટીગણ, ભાઈઓ ને બહેનો, શંખ નો અર્થ એ હું કહું એ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાન કહીને ગયા છે, પણ એનું કોઈ જગ્યાએ વર્ણન જોવામાં નથી આવતું. શંખનો અર્થ શિવ સાથે જોડાયેલો છે. શંકર શબ્દ, શંખ એટલે શંખ અને કર એટલે વગાડનાર. જે શંખને વગાડે છે એનું નામ શંકર છે. દરેક વેદોની અંદર પણ શંખને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો છે. ઉપનિષદમાં પણ શંખને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. અને ગીતા આપણે ખોલીએ તો એના ફ્રન્ટ પેજ ઉપર જ ભગવાન શંખનાદ કરતા હોય, સાથે અર્જુન પણ હોય. તો શંખ અને શંખનાદ,
શંખનાદનો અર્થ શું છે ખબર છે? બધાને ખબર જ હશે. તમારા કરતા હું બહુ નાનો છું, પણ હું એટલું ચોક્કસ કહું કે શંખનાદ એટલે વિજયનો નાદ. શંખનાદ એટલે અંધકાર ઉપર પ્રકાશનો નાદ નો વિજય. અને જો હાલની ભાષામાં આપણે જોઈએ તો ત્રસ્ત થયેલા લોકોને જો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બતાવવું હોય ને એવું જીવન બનાવવું હોય તો પણ શંખનાદ. કારણ કે પોઝિટિવ ઉર્જા એ શંખ આપે છે. શિવજીના દર્શન કરવા આપણે જઈએ કોઈ પણ મંદિરની અંદર તો લિંગની બાજુમાં શંખ પડેલો હોય, તો એનું મહાત્મય શું તો આપણને ખબર નથી હોતું, પરંતુ એનું શાસ્ત્રોક્ત વિધાન અને જો બહુ ડીપલી જોઈએ તો એ આપણી સાથે સંકળાયેલો છે. કેવી રીતે? તો અંદર જે આપણો જીવ છે એ જીવને શિવ સાથે કનેક્ટ કરવા માટેનું આ એક શસ્ત્ર છે. એટલે જેવો નાદ શરૂ કરીએ એટલે આપણું ટ્યુનિંગ, એ જે અવાજ છે એ બ્રહ્મ તરફ એટલે ઈશ્વરની સાથે આપણે કનેક્ટ થઈએ છીએ. એને કહેવાય છે શંખનાદ. અને ગીતામાં પણ આનું અધ્યયન આપણે બધાએ કરી ચૂક્યા છો. ખાસ એ તરફ થોડીક વાત લઈ જાઉં તો પહેલા અધ્યાયની અંદર શ્લોક છે કે પંચજન્ય હિષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય પોટ દદ્મો મહાશંખ ભીમકર્મ વૃકોદર અનંત વિજયમ રાજા કુંતી પુત્રો યુધિષ્ઠિર નકુલ સહદેવશ્ચ સુઘોષ મણિપુષ્પકૌ. દરેકના અલગ અલગ શંખ છે. કૃષ્ણ ભગવાનનો પંચજન્ય શંખ છે. પંચજન્ય હિષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય. પાંડવોના દરેક પાંચે પાંચ પાંડવોના અલગ અલગ શંખ છે. અને સુઘોષમ મણિપુષ્પકૌ છેલ્લે સુધી. અને આપણે ઘરમાં શું કરીએ? કોઈ દેવસ્થાને આપણે દર્શને જઈએ અને શંખ લાવવો હોય તો આપણે શું કરીએ? ભાઈ કેટલાનો છે? તો કે 500 રૂપિયાનો. ડુપ્લિકેટ હોય આપણે લઈને આવી જઈએ. પણ કે ક્યાંક સાંભળ્યું છે ભાઈ શંખ હોય તો બહુ સારું અને એને આપણે શંખ ધ્વનિ કરવું જોઈએ. પણ એ આપણે ખોટા વહેમમાં છીએ. કયો શંખ આપણા માટે સારો છે એ આપણને ખબર નથી. કયો શંખ આપણે ધારણ કરવો જોઈએ એ આપણને ખબર નથી. કેમ સુઘોષ મણિપુષ્પકૌ? કેમ નકુલ અને સહદેવે એમના પોતાના અલગ અલગ શંખ રાખે છે અને આપણા ઘરમાં એક જ શંખ બધા વગાડતા હોય? અને ક્યાંક બધા ના વગાડતા હોય, આપણે જોઈએ તો એક જ માણસ હોય જેને બહુ એવું હોય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ હોય, એનો નાદ કરે. પણ દરેકના અલગ અલગ શંખ છે. અધ્યાત્મ એવું કહે છે કે દરેક પાસે અલગ અલગ શંખ હોવા જોઈએ. આપણું બાળક હોય તો કે બેટા યાર આઈફોન જોઈએ છે, લે ચલ તારા બર્થડે ઉપર આઈફોન. પણ એવું આપણે ક્યારેય નથી વિચારતા કે એને આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ, સકારાત્મક ઉર્જા તરફ લઈ જઈએ અને એક એવો સારો શંખ ભેટ આપીએ તો એનું જીવન દીપી ઉઠે. અને એના લીધે ઇફેક્ટ બીજી શું આવે છે? હું તમને બહુ અગમ બુદ્ધિ વાણીઓ, આપણે બધે વાણિયા જેવા બનવાનું છે. પાશ્ચાત બુદ્ધિ બ્રહ્મ, જે કે હું બ્રાહ્મણ છું પણ આશીર્વાદથી એ બધા મારી સાથે સંકળાયેલા છે. જૈન પરિવારો ખૂબ વધારે અને શ્રીજી બાબાને તો એવું કીધું છે કે આપણે જો શંખનાદ કરીએ ને તો આપણી પાછળની જે પેઢી છે ને એ એનો લાભ લે છે. અને એ આપણે રૂટ્સ નાખતા જઈએ છીએ. કુદરતી આવે છે, આપણે કશું કરવું નથી પડતું. મચ્છરો લાવવા ના પડે, મચ્છરો આવે. એવી રીતે આજુબાજુનું એક મંડળ, આભા મંડળ કુદરતી બને તો ઓટોમેટિકલી સારી સારી બધી વસ્તુઓ આપણી પાસે આવે. અને ખરાબ જો આપણે આપણું આજુબાજુનું ખરાબ વર્તણૂક બનાવીએ તો મિત્રો પણ એવી રીતે થાય છે. એવી રીતે હું બહુ લાંબુ વિચારીને કહું તો આપણી સંસ્કૃતિને અને ભારતને જો સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરી દેવું હોય દરેક વ્યક્તિઓમાં, તો દરેકે શંખનાદ કરવો જોઈએ. બાળકોથી એની શરૂઆત, મેં મુંબઈમાં એની શરૂઆત કરી દીધી વિક્રોલીથી. પવન અગ્રવાલ કરીને છે, ડબ્બાવાલા મુંબઈ, એમને આખું એનું રિસર્ચ કરેલું છે ને અત્યારે બધું સંભાળે છે. એમની સ્કૂલની અંદર
એમને કીધું સમીરભાઈ આપણે આ બધાને શંખનું વિતરણ કરીએ અને તમે જેમ કહેતા હતા એવી રીતે બધા બાળકોને ફ્રી ઓફ, ગુજરાતથી હું અહીંયા આવ્યો તો શંખ મેં કીધું મેં લવડાવી દીધા હતા અને એની ફ્રી ઓફ ટ્રેનિંગ મેં આપી. અને એવી બીજી સ્કૂલ છે, એ બીજી સ્કૂલ એમની પોતાની જ છે, ત્યાં પાછું એક શરૂઆત થવાની છે. અને બીજું એક ખાસ કહું કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાએ પણ એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, હમણાં જ આજની જ વાત છે, કે સમીર આપણે આના માટે કંઈક સારું કરીએ, સમાજમાં કંઈક આવું એક વાઇબ્રેશન સારું જાય તો પાછળની જે પેઢી છે એમના માટે કંઈક આપણે સારું કરી શક્યા હોય એવું લાગે આપણને. તો આ બહુ લાંબુ છે, મારે આખા શરીર ઉપર આનું વિજ્ઞાન છે કે ન્યુરોન્સથી લઈને છેક પગના સુધીના પ્રશ્નો છે ને એ શંખનાદ સોલ્વ કરી શકે છે. અને ગુજરાતથી છું એટલે મોસ્ટ ઓફ બિગ ડોક્ટર્સ દે હેવ જોઈન્ડ મી, ન્યુરોલોજીસ્ટથી લઈને બધા, સુધીરભાઈ શાહ ને બધા થઈને આપણે કહીએ તો આટલી બધી એની અસર છે. તો પોઝિટિવ અસર આપણે કેવી રીતે લઈ શકીએ, તો આવી ટોટલ 9 મુદ્રાઓનું સંશોધન મેં કરેલું છે. મેં ના કહી શકું પણ ભગવાનની કૃપાથી મારાથી આ થયું છે, તો એનો લાભ હું બધાને આપતો જાઉં છું. અને હમણાં જ ગઈકાલે ટાટા ગ્રુપની અંદર ખુશરૂ સંતુક સર, ચેરમેન ઓફ એનસીપીએ, એમની સાથે પણ મારી ભેટ થઈ અને એક આયોજન એનસીપીએમાં પણ થઈ રહ્યું છે. તો થાય છે કે અહીંયા પણ કંઈક સારું એવું સકારાત્મક ઉર્જા થઈ રહી છે. ગુજરાતથી આવું છું, દેટ ઇટ ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓવર હિયર. આ સમય આપ્યો એ માટે દરેક ટ્રસ્ટીગણને, ખાસ કરીને અનિલભાઈ આચાર્ય ગુરુજીને ખૂબ આના માટે હું કહું કે અભિનંદન, કે ખાસ મારા માટે કે હું આ મારી વાણીને એક પોઝિટિવ ઉર્જાઓ તરફ લઈ ગયો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને શંખનાદ કરું. મને 5 જ મિનિટ આપી હતી એટલે મારે એનામાં પૂરું કરવાનું છે. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાત. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ તત્સવેતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ નમઃ પાર્વતીપતય. હર હર મહાદેવ હર. ઓમ. કોરોનાને આપણે મહાત કરી શકીએ, રાઈટ? કારણ કે આપણા ફેફસા મજબૂત થઈ જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. મહાદેવ. अनिल भाई का फोन आया था कि सबीर भाई यहाँ पे है और इनकी इतनी सुंदर कला है, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम था और शंख का हमें सुनने का अवसर मिल गया है। तो ये थे हमारे शंखनाद।
इसके बाद अब हम मालिनी बहन से रिक्वेस्ट करेंगे। मालिनी बहन प्रेमपुरी से कई वर्षों से जुड़ी हुई है और मालिनी बहन बहुत सारे प्रवचन भी दिए हैं और वो सुंदर ये और हमारी चारू बहन दोनों ने अच्छे कार्यक्रम प्रेमपुरी में किए हैं। तो मालिनी बहन गीता की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोवर है और सारे प्रवचन सुनती है। तो मालिनी बहन से रिक्वेस्ट करूँगी 10 मिनट के लिए ये उनका गीता के साथ क्या अनुभव रहा है इसके बारे में बताएँ। हमारी भजन संध्या और व्याख्यान माला है। चिमन भाई के साथ में मालिनी बहन भी इनका संचालन करती है। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की दिव्य चेतना को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी विजयानंद पुरी जी पर और परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। परम पूज्य अनिल भाई पंड्या आपना चरणों में वंदन। समीर भाई आपे तो खूब सुंदर माहौल करी आप्यो अहिया। आश्रम के पूज्य ट्रस्टी मित्रों और आप सभी सत्संगी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती शुभ अवसर मिला है। हमें गीता से ज्ञान प्राप्त करना है। अपने अनुभवों को फिर से याद करने का शुभ अवसर हमें मिला है। बचपन से मुझे गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पिताश्री हर रोज सुबह भगवान की छवि समक्ष दिया प्रकट करके अपने मधुर कंठ से पुरुषोत्तम योग का गान करते थे। मैं छोटी थी, मुझे अर्थ समझ में नहीं आते थे, पर श्रवणानंद का आनंद था। स्कूल में प्रार्थना के माध्यम से अध्यात्म की ओर अंगुली निर्देश होता था। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। मंदिर तारू विश्व रूपाणु, सुंदर सर्जनहारा रे। कॉलेज में मैं प्राध्यापिका थी, तब गुजराती हिंदी भक्तिकालीन युग के कवियों की कविताएं सिखाती थी। मीरा, तुलसी, नरसी, अखो। तो तब अनजाने ही गीता जी का अनुसंधान होता था। और जब मैं छोटी थी तो स्वामी चिन्मयानंद जी के प्रवचन ओवल मैदान में होते थे और भारतीय विद्या भवन में होते थे, तो मैं मेरे पिताश्री के साथ वहां उन्हें सुनने भी जाती थी। 2010 और 11 से प्रेमपुरी जी आश्रम से जुड़ी। उस समय हमारे आश्रम के ट्रस्टीगण पूज्य दालमिया जी, पूज्य बाबूजी, पूज्य गिरीश भाई और मुरब्बी दीनाबेन, उन्होंने मिलकर गीता दिव्य ज्योतमाला की नींव रखी। इस कार्यक्रम के समग्र आयोजन और संचालन करने की सेवा मुझे मिली। पूज्य डॉक्टर नरेश भाई वेद भी इसके समग्र आयोजन में मार्गदर्शक बने। उनके अखूट ज्ञान का लाभ मिला। गीता दिव्य ज्योतमाला अंतर्गत आदि शंकराचार्य जी से शुरू करके माधवाचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री जी इत्यादि विद्वानों द्वारा रचित गीता की टीकाओं का अध्ययन खनन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समग्र बाह्य आयोजन करते करते मुझे लुक विद इन की ओर मोड़ा। धीरे धीरे एक टर्न आने लगा अपने जीवन में। अध्ययन करते वक्त
जहां रुक जाती वहां डॉक्टर नरेश भाई राह दिखाते थे। जगत और जीवन के प्रति दृष्टि में बदलाव आया। आध्यात्मिक सूझबूझ से सज्ज होने की तमन्ना और धुंधला मार्ग दिखने लगा। हल्की सी झांकी होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप गीता परिवार से जुड़कर श्लोकों के शुद्ध उच्चारण प्रति रुचि हुई। अभी मैं उनके लेवल 4 में अध्ययन करती हूँ। गीता जी के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण से स्वयं गान करते करते उनके अर्थ खुलने लगे, समझ में आने लगे। तब से उन अर्थों का अनुसंधान अपने जीवन से, आचरण से सज्ज और सजग रहती हूँ। इस समग्र प्रक्रिया प्रोसेस में मेरे अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन की मैं खुद साक्षी हूँ। एक ठहराव महसूस होता है। पहले छोटी छोटी बातों से एक्साइट होना, अनिश्चित कार्यक्रम हो तो अनेकानेक प्रश्न और शंका होती थी, चिंता रहती थी। झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज भी नहीं कर सकती। तब मैं जबरदस्त विरोध करती थी। उससे क्रोध, राग, द्वेष जैसे अवगुण हावी होते थे। पर अब धीरे धीरे ये सारे अवगुण शेष होने लगे हैं। बहुत कुछ छोड़ दो, लेट गो कर लो, संयम से उस समय को बह जाने दो। ये बात अपने आप से कहती हूँ। ये सब मुझे सीखने मिला गीता के अध्ययन से। मैं समझती हूँ समय, संयम और शक्ति की अहमियत अब मुझे समझ में आती है। गीता जी के अध्ययन से स्वयं मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ और विश्वास से अपने आप को सांत्वन देना या कुछ और करने की तमन्ना हो, ये दोनों बात जीवन में आई है। मुझे लगता है कि सद्गुण अब उजागर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन धर्म यानी क्या, परम धर्म क्या है, इस प्रश्नों के उत्तर समझने प्रयत्नशील हूँ। जीवन में अहंता और ममता संसार से जुड़े रखते हैं। उस जाले को, नेटवर्क को शिथिल करने का प्रयत्न करती हूँ। उसके प्रति मैं सजग हूँ। शास्त्रोक्त परम धर्म को समझने, उसका एहसास करने हेतु प्रत्येक जिम्मेदारी को सुचारू रूप से पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। मन में अखंड जप, कीर्तन और अर्थानुसंधान हेतु निरंतर परमात्मा स्मरण में रहते हैं। कर्मानुसार और धर्मानुसार भगवान ने जो समय, शक्ति दी है, उसका सर्वोत्तम आश्रय रहे, यही अभ्यर्थना है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक ने बड़ी गहरी समझ दी है। जब हम अपने घर परिवार की युवा पीढ़ी के लिए सम्मानीय बुजुर्ग होते हैं, तब अपने परायों का भेद करना उचित नहीं है। इसी अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक से सीखते हैं कि विकट परिस्थिति में मध्य में, केंद्र में जुड़कर अंदाजा लगाना आवश्यक है। दूसरा अध्याय सांख्य योग के श्लोक क्रमांक 62-63 से विषयासक्ति से कैसी बुराइयों की श्रृंखला बनती है, काम, क्रोध, मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश और अंततः पतन होता है। वास्तव में ये सारे मन के खेल है। 64वें श्लोक में हमें व्यवहार के प्रति अविरत सजग रहने से, उपरोक्त दूषणों से अपने आप को बचा सके, तब स्थिर बुद्धि से हमें आध्यात्मिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। स्थित प्रज्ञ दर्शन से जीवन में सूत्रात्मकता बनी रहती है। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय श्लोक के माध्यम से अपने सुंदर जीवन यापन की राह स्पष्ट दिखाई देती है। ज्ञान प्राप्त होता है। स्वानुभूति का आनंद ही नंदनवन है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई ने कहा, साकर शेरडी नो स्वाद तजीने कड़वो લીમડો ગોળ મારે, ચાંદા સૂરજ નો તેજ તજીને आगिया संगाथे प्रीत जोड़ मारे। गीता अमृत कलश में
ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों आपस में एक ही है, तीनों त्रिवेणी तीर्थ है। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में 7वें और 8वें श्लोक में आप सभी जानते हैं, यदा यदा ये धर्मस्य और परित्राणाय साधुनाम, तो सज्जन शक्ति साधुता के प्रति अगर दुष्टों द्वारा जुल्म होता हो तब हमें सक्रिय होना है, एकजुट होना है। हम में बसे नारायण ही हमें प्रेरणा और शक्ति देता है। हमें नारायण पर पूर्ण विश्वास भरोसा है। हर युग में युगानुकूल उसके अर्थघटन होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग के प्राक कथन में कहा है कि युग के बदलाव से विस्तार होगा, फिर भी गीता के मूल अर्थ कभी नहीं बदलेंगे। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, तब युग के मुताबिक, युग के अनुरूप नूतन स्वरूप से भगवान प्रकट होते हैं। हमें आजीवन दृढ़ विश्वास हो, स्वीकृति, संभाव, सब प्रेम से भगवान के व्यू का अनुभव लेना है। मनुष्य जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, जीवन में कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, जीवन में प्रेम से बढ़कर कोई नाता नहीं। तो इस तरह हम देखें तो एक बहुत अच्छा इंग्लिश में एक कोट मुझे मिला, ट्रस्टिंग गॉड्स प्लान, लीव रूम फॉर गॉड टू सेंड यू ऑन द रूट्स, बिकॉज द ब्लेसिंग्स मे कम ऑन द पाथ्स that you didn't expect to take. એટલે બહુ જ મોટી વાત અહીં કહેવામાં આવી છે. અને સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌએ મને આ રીતે તક આપી અને હું વિચારો વ્યક્ત કરી શકી. કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એ મારી છે, આનંદ મળ્યો એ આપણા સર્વનો છે. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ અર્પણસ્તુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ માલિનીબેનની યાત્રા નથી, આપણા બધાની યાત્રામાં આપણે ક્યાંક ક્યાંક જોવાનું છે કે આ મારા જીવનમાં પણ આવું ક્યારે થયું. અને મેં એ જે અંદરથી જે અવાજ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતો હોય છે એ મેં અવાજ સાંભળ્યો કે નહીં એ બહુ જરૂરી છે. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી ગિરીશભાઈ ડ્રેસવાલાને આવીને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે. ગિરીશભાઈ જે એમનું અલગ અલગ મંડળોથી જોડાયેલા છે, પ્રેમપુરી સિવાય ઋતંબરાના પણ ટ્રસ્ટી છે, અને એમનું જે કયું તમારું વર્લ્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ કમિટીના ચેરમેન છે. હા, આધ્યાત્મિક કમિટીના ચેરમેન છે. હમણાં એમના ઠક્કર, જે બધા ઠક્કર છે, એ બધા લોકો મને મળ્યા હતા અને એમણે એકદમ એક્સાઇટેડલી કીધું, ઓ તમે પ્રેમપુરીમાં છો, અમારા ગિરીશભાઈ ત્યાં છે ને એમણે ત્યાંથી ફોન પર કર્યો. એટલે એવા અમારા ફેમસ ગિરીશભાઈ આગલી 10 મિનિટ પોતાના ગીતા સાથેના અનુભવો વ્યક્ત કરશે. ગિરીશભાઈ ઘણા બધા લેખો લખે છે, પ્રવચનો પણ કરે છે, એટલે એમની પાસે કહેવાનું ઘણું બધું છે. પણ આપણી સામે એકદમ આમ નાની એક પિલ આપતા હોય, ટેબ્લેટ આપતા હોય કે એક ટેબ્લેટથી બધું સારું થઈ જાય, એવી રીતે આપણે ગિરીશભાઈને સાંભળશું. ओम। आज के यह पवित्र दिवस गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रातः प्रवचन और स्वाध्याय में गीता पठन पूरी इससे बहुत सुंदर इससे हुआ, और आज स्वयं जो गीता जयंती का पर्व यहाँ मना रहे हैं, तभी संतों के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। हमारे अनिल भाई पंड्या जो सालों से हमारे बहुत करीब के हैं और परिवार की तरह ही है, उनको भी वंदन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और जो भी समीर भाई है, मालिनी बहन है, हमारी विशेष करके दीना बहन है, राजेश है,
तो चिमन भाई कहीं है नाम पे न जाए काम पे जाए। गीता का यही एक कर्म पर पूरी गीता बेस है और गीतामयी जीवन के अनुभव इसका शीर्षक दिया गया है। कृष्ण अनेक रूप में पूज्य है। पूज्य भाव वह पूजनीय परमात्मा के लक्षण है। माँ सरस्वती को पहले याद करें तो जो मोरपींछ मस्तक पर कृष्ण के शोभ रहा था, वह एक सरस्वती का जो वाहन था, उसको सम्मान देने यह मोरपींछ भगवान कृष्ण ने अपने मस्तक पे लगाया। तो ऐसी माँ सरस्वती को भी वंदन करते हुए आज गीता जयंती के पर्व पर यही कहेंगे, ढूंढूं क्यों ऐसे मौके को मैं, ढूंढूं क्यों ऐसे मौके को मैं, चुनौतियों को मस्तक पे चढ़ाता हूँ। जीवन में चुनौती आती ही है और चुनौतियों को मस्तक पे चढ़ाना यह मेरी फितरत है, क्योंकि मेरे अनुभव की बात दीना बहन ने कहीं लिखी है कि अनुभव की बात करो। तो ढूंढूं क्यों ऐसे मौके को मैं, चुनौतियों को मस्तक चढ़ाता हूँ, यह मेरी फितरत है, मेरा स्वभाव है। संजीवनी उसे जीवन के बनाने हर दिन कृष्ण मोरपिंख से तुझे सजाता हूँ मैं। जीवन में यह एक मोरपींछ अगर हमारे प्राप्त हो जाए और कर्म पर हम आगे बढ़े तो गीता हमारे जीवन में उजाला ही उजाला लेके आती है। मेरा परिचय गीता के साथ, श्रीमद् भगवत गीता के साथ सालों से रहा। पूज्य मेरे जीवन में 3 हर आए। एक तो हरि, हमारे पिताश्री हरि भाई ड्रेसवाला, उसने एक नया मार्ग पूरा दिखा दिया। जीवन कैसे जिया जाए वह उन्होंने बताया। तो उनके साथ जो बहन ने अभी बात की सापुतारा में, जब भी हम जंगल में, तभी जंगल था पूरा, जब ये सापुतारा जैसे प्रेमपुरी बना उसी तरह से सापुतारा में, तभी वाघ और चीते रास्ते में आते थे। तो पिताजी बोलते थे चिंता मत करो, कुछ करेंगे नहीं, उसको निकल जाने दो। एम्बेसडर गाड़ी ना, तभी एयर कंडीशन था ना कुछ, फिर भी वह सब चले जाते थे। तो भय मुक्त करने का एक प्रण, एक स्तोत्र, एक दिशा हमें पूज्य पिताश्री ने दी और ये प्रेमपुरी जो बना तभी से, और प्रेम कुटीर था, फिर भवंस में गए हम, तभी से पांडुरंग शास्त्री के साथ भी बहुत अच्छा सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। कई संतों का परिचय रहा, मगर बात करनी है गीता की। तो यहाँ एक महाराज जी जैसे यह भागवत गई, तो भागवत के आखिरी दिन जो वहाँ नए नए संत उनको बुलाए जाते, नए नए शिष्य है उनको बुलाया जाता है, 2-2 मिनट बोलने का रहता था। तो उसमें उसके बाद पिताजी ने कहा कि यहाँ यंगस्टर्स के लिए कुछ खास प्रवृत्ति नहीं है, और तभी ईश्वर की दया से मैं युवा भी था, आज भी हूँ। गीता जब ये जीवन में होती है ना, तो कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता है। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए, कभी कृष्ण का एक भी चित्र हमें चित्र ऐसे नहीं मिलेगा कि जो उसकी उम्र को बयान कर सके। तो हम भी गीता के प्रेमी हैं, तो हम भी युवा ही है। तो उस समय पिताजी ने जाहिर की कि हमें गीता यहाँ युवाओं के लिए कुछ करना है, और मैंने खड़े रह के हाथ किया कि मैं ये संभाल लूँगा। बाद में हमारे साथ प्रकाश भाई मेहता, मेरी बहन अनिशा बहन, हम तीनों ने यह दिव्य पथ, जो नाम मैंने खुद ने ढूंढ के दिया, और हरिभाई कोठारी, मैं हर 3 हर की बात की, उसमें हरिभाई भी आएंगे। तो वो हरिभाई कोठारी ने वो दिव्य पथ की फिर बाद में बुक भी बनाई। बोला गिरीश मुझे दिव्य पथ इतना अच्छा लगा कि मैंने ये किताब भी बनाई दिव्य पथ के नाम से। तो डिवाइन वे ऑफ लाइफ
दिव्य पथ वो शुरू हुआ और आज करीब करीब 30 साल से यह दिव्य पथ के अंतर्गत हमारे ईश्वर की दया से कांति भाई शाह करके थे, उन्होंने प्रेरित किया कि यहाँ इस्कॉन में डॉक्टर शांतनु आते हैं। उनको हमने सुना, खुशहाल भाई ने सुना और हमें बताया कि भाई बहुत सुंदर है और उन्होंने स्वीकृति दी और तब से यहाँ निरंतर यह डॉक्टर शांतनु नगरकटी द्वारा जो गीता के इंग्लिश में प्रवचन बहुत ही सुंदर रीति हुए। तो यह गीता की एक झलक मैंने बताई कि मैं गीता से कैसे जुड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है, आप लोगों के अनुभव की बात है, क्योंकि आप भी मेरे साथ प्रेमपुरी में जुड़े ही हैं। इंसान मायूसी के पंजरे में कैद एक जिंदा परिंदा है, मजबूर है, उम्मीदों से घायल, उम्मीदों पर ही वो जिंदा है। तो क्यों संजोग से मैं रोऊं, दिव्य राह बनाता हूँ राही। 3 मैंने शब्द दिए हैं, एक तो राह, एक राही और एक राहबर। गीता के साथ हमें चलना है तो राह हमें पहले चुननी चाहिए। दिव्य राह बनाता हूँ राही, गीता की सुदर्शन धारा, यानी राही जब भी रहेंगे तो हम रहेंगे, मैं रहूँगा। तो अर्जुन हूँ मैं और गीता के कृष्ण, राहबर तुम्हें बनाता हूँ। तो भगवान कृष्ण को राहबर बना दिया, तो राह, राही और राहबर ये 3 जीवन की मंजिल हमें तय करा देंगी किस तरह से हम आगे बढ़े। स्नेहजन आप सब बहुत ही हमें सालों से एक साथ हम जुड़े हैं, तो स्नेहीजन का कहने में आनंद भी होता है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता के दूसरे अध्याय में यह कृष्ण ने कहा, कर्मों की कुशलता साधक को कुशल बनाती है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ दूसरा सत्य नहीं। जिसे मोतियों की माला धागे में गुथी है, उसी तरह से संसार में सब कुछ मुझ में आश्रित है, मैं ही हर कण 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 में बसा हूँ। तो ऐसे कई सुंदर श्लोक हमें प्राप्त हो गए कि जो हमें संसार की जो हमारे एक संघर्ष है उससे बाहर निकलने की, जीवन में संघर्ष ने मुझे अपनाया और मैंने संघर्ष को बड़े प्रेम से अपनाया, बहुत फर्क है। बचपन से लेके कई ऐसी घटनाएं हुई कि लगता था कि गिरीश तू कब गिरेगा, कब उठेगा, कैसे करेगा, पर हर क्षण, हर हीरा और हर हरीलाल ड्रेस वाला जो मैंने बताया, हीराबाई ठक्कर जो कर्म के सिद्धांत की बहुत सुंदर उनकी किताब, और सालों में अभी तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सुंदर उसको बनाकर पार्लियामेंट में भी उनको बांटा। तो वह का हीराबाई ठक्कर बहुत ही करीब थे हमारे। और कर्म के सिद्धांत, अगर हम हरि और हरि दूसरे जो हरिभाई कोठारी, ये 3 मेरे जीवन में क्रांति लाए। गीता को अगर मैंने पचाया है तो तीनों से पचाया, और हरिभाई कोठारी ने एक नया जीवन मुझे दर्शन दिया कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। और संघर्ष तो आना ही है, हर संघर्ष में, हर पड़ाव में। वही स्मिथ से बाहर निकल जाता था, कोई तकलीफ नहीं। जीवन में अगर गीता हमने पचा ली है तो हम बहुत शांति से आगे बढ़ सकते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव की बात कर रहा हूँ, न किसी के साथ की दूसरे की बात कर रहा हूँ कि दूसरे ने क्या किया, कि बात करनी अपने अनुभव की। कई ऐसी एक घटनाएं भी हुई कि जो यहाँ बयान करने का समय न होने से उसको न लेते हुए, श्रीमद् भगवत गीता के कृष्ण मेरे लिए क्या थे? वह ईश्वर, सखा, समधी या गुरु, वह सारथी थे, परमार्थी थे, वह मानव
वह माखन चोर मुरलीधर सुदर्शनधारी कृष्ण परमात्मा मनुष्य अवतार में माणसाईनो दीवो ज नहीं पण महामानव बनकर दीप से जगमगाए। भारत में भगवान नारायण श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण विराट दर्शन से मेरे जीवन दीप बने। कभी माँ की गोद बने, कभी दिव्य पथ के साथी शांतनु बने। कुरुक्षेत्र जैसे संघर्षों में गिरीश के दिव्य रथ मेरे सारथी बने। फिर भी द्वारिका महल में खड़ा सुदामा ही सुदामा में रहा। हे कृष्ण, तुझ में ठाकुर रमण बिहारी देखूं। हे मुरारी, तुझ संग नंद जी का लाला सा खेलूं। हे महाभारत के पंचजन्य शंख, जो अभी समीर भाई ने बात की ध्वनि से स्मरूं, या तुझे मैं मेरी नैया का खेवैया समझूं। मेरे सोचने से पहले ही मैंने तुझे पाया है। कृपा कन्हैया तेरी है अच्युत, विश्वास की हर सांस में हर धड़कन में तू समाया है। बचपन से हमारे स्वामीनारायण के संत योगी जी महाराज ने मुझे अपनाया। आज गुरु के रूप में गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रेमपुरी में, उनको दंडवत करता हूँ। और एक आखिरी प्रार्थना जो मेरे जीवन के बहुत करीब है, और यह मैं कॉलेज के समय में लिखी हुई है, क्योंकि बचपन से लिखने का शौक था। एक आग सी भड़की गई, चिता पर बैठा हुआ मानवी यह कहता है कि एक आग सी भड़की गई, सूखा कथई जली गई, मुझ आत्मनी एक चिंगारी, प्रभु शु तुझ चरण में मળી गई। हूँ धन्य थयो प्रभु के मारी पापनी दुनिया सळगी गई। मेरी आत्म की एक चिंगारी हमारे जीवन की, जब मृत्यु शैया पर बैठा हुआ आदमी के जीवन और चिंगारी भी प्रभु के चरण में मिले तो क्या हो, वह धन्य हो थयो प्रभु कि मारी पापनी दुनिया सड़गी गई। तो यह एक गीता के साथ छोटा परिचय था, और जीवन में गीता के साथ साथ जो वेद है, जो ये प्रेमपुरी आश्रम का मूल है, वह प्रातः भी हम सुनते हैं और कई संतों से बारंबार हम सुनने का आनंद लेते हैं। तो गीता को दृढ़ कर फिर वेद में भी प्रवेश करें, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने वेद की कई सुंदर बातें बताई है, और इस सहज रीत से बताई है कि जीवन में उतर सकती है हमारे। और जब भी हम वेद के ज्ञान पे जाते हैं तो वो एक बड़ी उच्च अवस्था है, और उसको भी हम जीवन में अपनाएं। आप सभी की ओर से आप सभी का जीवन भी गीता श्रीमद् भगवत गीता में आप में उतरे। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में हर पल हर क्षण रहे और जीवन उजागर हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री राम को वंदन करते हुए, यहाँ बैठे हुए संत और विद्वान सभी को वंदन करते हुए ओम ओम ओम। नहीं, आदरणीय श्री प्रेमपुरी महाराज के चरणों में वंदन। आदरणीय मंच स्थित स्वामी जी के चरणों में वंदन। श्री अनिल जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सब श्रोताओं को वंदन। मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही कहूँगा। दीनाबेन मेहता ने मुझे कहा कि તમારા અનુભવ કહો। કૃષ્ણકાલીન યુગમાં 2 ચીજનું સર્જન થયું। कृष्णकालीन युग में 2 चीज का सर्जन, स्वर्ग से भी सुंदर द्वारिका बनी और वेदों से भी उत्तम गीता बनी। आज द्वारिका नहीं रही, गीता घर घर में है। तो इसका अनुभव गीता का वही एक शब्द है। अरे હું બહુ નાનો હતો ને માલિનીબેન, ત્યારે દેશી નાટક સમાજના એક શ્લોક છે, હાર કોની થાય છે ને જીત કોની થાય છે, હું પૂછું છું ના વળી કોની કિનારે જાય છે। તો જવાબ છે સત્યની તો જીત થાય છે ને પાપી તો ધોખા ખાય છે, ના વળી તો સત્યની કાયમ કિનારે જાય। હવે હું અમારા માનનીય આદરણીય વાઇસ ચેરમેન શ્રીમતી દીનાબેન ને કહીશ,
પણ એની પહેલા હું 1 મિનિટ આઈ એમ ટેક ધ લિબર્ટી ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ દીનાબેન. જેમ કૃષ્ણનો પરિચય કૃષ્ણ સ્વયં જ છે, એમ દીનાબેનનો પરિચય દીનાબેન સ્વયં જ છે. આજથી 15 વર્ષ પહેલા હું તો એ કોન્વેન્ટમાં ભણેલો, મને આ બધું કંઈ આવડતું નહોતું, પણ દીનાબેનની મહેરબાનીથી આઈ કેમ ટુ પ્રેમપુરી એન્ડ આઈ હેવ રેઝડ. અને સેવા કરવાનો જે મોકો દીનાબેન આપ્યો. દીનાબેન એક સફળ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એક સફળ ગૃહિણી. એ તેઓ કોઈ ચીજ ચૂકતા નથી. પોતાનું ગ્રહસ્થમાં પણ કામ કરે છે. આશિષભાઈને પણ વર્ષોથી, અમારે 40 વર્ષથી શેર બજારનું સાથે કામ. અને દીનાબેન વોઝ સો ફેમસ કે દીનાબેન એટલે શેર બજાર એમ. અને પછી ધીરે ધીરે આગળ વધતા તેઓ ચેરમેન થયા. પણ એ અનુભવ બહુ અગત્યનો નથી, આપણા પ્રેમપુરીનો અનુભવ છે. દીનાબેને તન મન અને ધનથી પ્રેમપુરીને કાર્ય કર્યા છે અને અત્યારે તેઓ વાઇસ ચેરમેન છે. હવે હું એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓના અનુભવ કહે. मैं प्रेमपुरी आश्रम से पिछले 30 साल से जुड़ी हूँ और सभी संत और सभी लोग मेरी उम्र में बड़े हैं, तो मैं सीनियर मोस्ट ट्रस्टी हूँ, लेकिन उम्र में सबसे छोटी हूँ। तो प्रेमपुरी आश्रम से जुड़ने से पहले तो हम सब भागवत रामायण वगैरह सुना करते थे, इतना गीता से इतना परिचय नहीं था। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिंदू स्टडीज OCHS, तो वहाँ पे बहुत अच्छे गीता के क्लास चलते हैं और वो ऑनलाइन क्लास थे। तो इंडिया में तभी कोई ऑनलाइन क्लास का ये नहीं था। तो मैंने कहा कि हाँ, अगर कंप्यूटर में ही देखना है तो मैंने वो क्लास मैंने जॉइन कर लिया। उसके बाद में चिन्मय मिशन का मैंने 2.5 साल का कोर्स किया, 30 पेपर लिखे, हर एक पेपर 5-5 हज़ार वर्ड्स के, तो वो सारे लिखे। और मेरे जीवन में मैं पिछले 40 साल से शेयर ब्रोकर हूँ और मेरे जीवन में 3 बहुत ही प्रेशर पॉइंट्स हैं। एक है कि मुझे दिन के कम से कम 60 से 70 फ़ोन कॉल आते हैं। तो आप अगर 9 से 6 का वर्किंग देखो 540 मिनट में, और हर एक फ़ोन कॉल में 5 मिनट बात किया, तो हर 5 मिनट में 1 कॉल आता है। दूसरे मेरे लाइफ़ का ये है, 500 से ज़्यादा ईमेल आती है। और तीसरा है कि मेरी ऑफिस पवई में है, तो मैं 2 घंटे ट्रैफिक में मैं फँसी रहती हूँ। तो ये 3 जो प्रेशर पॉइंट्स है, इसकी वजह से ऑफ कोर्स लाइफ में काफ़ी ऐसे लगता है कि शाम हुई तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन गीता के संपर्क में आने के बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल गौण लगने लगी। जैसे मालिनी बहन ने बताया कि ये जो गीता दिव्य ज्योतमाला का हमने कार्यक्रम किया, मैंने 32 कमेंट्रीज पढ़ी गीता की, 32 कमेंट्रीज। सारे जितने भी हाथ में लगी, सब साधु वासवानी हो, लोकमान्य तिलक हो। जैसे लोकमान्य तिलक को इतना सारा ग्रीक फिलॉसफी और ग्रीक किताबों का उनको अनुभव था, तो उन्होंने लिखा था कि वो हैमलेट वगैरह जिन्होंने सुसाइड किए, अगर उसने भगवत गीता पढ़ी होती तो कभी भी सुसाइड नहीं करते। फिर एक पंडित रविशंकर महाराज की गीता पे टिप्पणी थी, और हर एक श्लोक में पंडित रविशंकर महाराज ने, महात्मा गांधी ने गीता को वो श्लोक कैसे अपनाया उसका उन्होंने उदाहरण दिया। इतनी मोटी किताब है, ये मैंने खुद तो पढ़ी। फिर मेरे ये अपने कोरोना काल में मेरी माँ को पूरी हमने पढ़ के सुनाई, पूरी गीता, ऑलमोस्ट 600-700 पेजेस, बट एवरी श्लोक महात्मा गांधी ने गीता का कैसे उन्होंने गीता को अपने जीवन में अपनाया, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो मैं तो ये मालिनी बहन ये सब बहुत सारे गीता के श्लोक बोलते हैं, लेकिन मैं इतना सारा स्टडी करने के बाद भी नहीं बोल पाती। लेकिन मैंने एक चीज़ की है कि मैं गीता को बिल्कुल अपने पास रखती हूँ। अभी किसी ने मुझे कहा कि मेरे फैमिली में पार्किंसन डिजीज़ हुआ है, तो किसी ने कहा आप लेफ्ट हैंड से लिखो रोज़ 15 मिनट 20 मिनट, तो आपको पार्किंसन का खतरा कम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने रोज़ भगवत गीता लिखने का शुरू कर दिया। रोज़ 5 से 6 श्लोक मैं सुबह लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑफिस में पहुँचती हूँ तो पहले एक अध्याय मैं भगवत गीता का पढ़ लेती हूँ, और
365 में से एटलीस्ट 300 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे गीता चिंतन माला के कार्यक्रम में भले 15 मिनट आओ, 20 मिनट आओ, लेकिन जो भी हम बात सुनते हैं उसमें एक बात भी अगर दिमाग में उतर जाए और अगर हम उसको जीवन में उतार सके तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है। उस दिन स्वामी जी ने एक बात कही कि गीता में कहा है कि लेने से देना ज़्यादा करो। तो मैं घर गई, मैं सोचा अभी इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ज़्यादा देना है। तो मेरे कबर्ड में बहुत सारी घड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा ये घड़ी मैं कब पहनने वाली हूँ? तो मैंने सारी घड़ी रिपेयर करने को दे दी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी दे दूँ। तो गीता को मतलब गीता के पास रहना, हर एकादशी को मैं पूरी गीता 700 श्लोक का पाठ करती हूँ। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गीता को अपने साथ रखिए, गीता का श्लोक सुनिए, गीता का प्रवचन सुनिए, गीता के बारे में जो भी जैसे हम लोग बाल महोत्सव में कार्यक्रम करेंगे, तो हम ये गीता पठन का कार्यक्रम रखते हैं। तो जहाँ भी मौका मिले आप गीता को अपने साथ रखो, जब तक गीता आपके आस-पास रहेगी, आपको लगेगा मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो भी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। सबके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे हमें कैसे यूज़ करने हैं हमारे पे है। तो जो भी काम को आप प्रायोरिटी देंगे, वो काम ज़रूर होगा। जैसे ऑफ़िस पहुँच के कोई भी कुछ भी खड़ा हो, गीता का एक अध्याय पढ़ने में दूसरा 11वां और 18वां वो पढ़ने में 9 से 11 मिनट लगते हैं। बाकी के सब अध्याय आपका 3 से 5, 6, 7 मिनट में आप एक अध्याय पढ़ सकते हो आराम से। तो दिन में हम 3, 5, 7, 10 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? तो ये एक आदत की बात है कि हम ये और आदत को किससे जोड़ना है, कोई भी एक्टिविटी से जोड़ना है कि मैंने उठा, नहा लिया, पहला काम मैं गीता का एक अध्याय का मैं पठन कर लूँगा। तो इस तरह से आप जितनी गीता गीता की किताबें रखिए घर में, आस-पास रखिए, उनकी कमेंट्रीज़ रखिए, जो भी है, अपने आस-पास जब तक गीता रहेगी तब तक आप एकदम सेफ ज़ोन में हो। और मैं तो शेयर ब्रोकर हूँ, जैसे ये इन्होंने कहा 40 साल से मैं शेयर ब्रोकर हूँ, तो शेयर के भाव ऊपर-नीचे जाते-आते रहते हैं, बट उसका मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ गीता है और वो जो होता हो। और है ना ये एक हमको हमको लगता है हम लोग बाहर से ज्ञान लें, लेकिन गीता में बहुत अच्छा समझाया गया है कि सब ज्ञान हमारे अंदर ही है। वो एक फूल की जैसा है कि एक-एक पंखुड़ी हम कैसे खोलते जाएँ। तो इस तरह से हमको ज्ञान हमारे अंदर वो ही ढूँढना है हमको और वो आते रहेगा आपके पास अगर आप गीता को अपने आस-पास रखोगे। तो इतना कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अनिल भाई पंड्या से और कि आप बोले और अनिल भाई हमारे बहुत ही अच्छे भागवत के वक्ता है और वो प्रेमपुरी में आते-जाते रहे। इनफैक्ट पूरा पंड्या परिवार और उसमें एक और जुड़ गए कि भूपेंद्र भाई पंड्या है, ये है, इनकी भतीजी है। सब लोग हमारे यहाँ पे आते हैं और मेरी भी आप सबसे अपील है कि 365 दिन गीता का कार्यक्रम कहीं पे भी आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, कोई भी वेबसाइट पे किधर भी नहीं मिलेगा, वो प्रेमपुरी में है, तो आप यहाँ पे आते रहिए। तो अनिल भाई पंड्या। मुझे मेरे अनुभव बोलना है, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे कितने दिन तक, कितने मिनट तक? 15 मिनट। अच्छा, अच्छा। वाह, वाह! स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए हमारे बाजू में विराजमान स्वामी जी को, उनके बाजू में स्वामी जी को, सबको दंडवत करते हुए और आप सबके हृदय में